السلام علیکم دوستو، کیا آپ ویسپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے بھیڑ یا پونڈ بھی کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ جی ہاں، ویسپ ڈھنگ بھی مارتا ہے۔ بھیڑ ہم سب کا جانا پہچانا کیڑا ہے۔ اس کو اڑتا بیٹھا ہوا دیکھ کر ہم فوراً اس جگہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اگر یہ کاٹ لے تو جسم کا وہ حصہ کافی دیر تک درد کرتا رہتا ہے جہاں یہ ڈنگ مارتا ہے۔ ماہرین بھیڑ کو کیڑوں کے اس خاندان میں شمار کرتے ہیں جس میں چیونٹی اور شہد کی مکھی شامل ہے۔ اس کی وجہ سے یہ بھیڑ بھی انہی کی طرح مل جل کر رہنے والا کیڑا ہے۔ بھیڑ سوائے سرد علاقوں کے دنیا کے ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ گرم اور نمدار علاقوں میں یہ خوب پھلتی پھیلتی ہے۔ بھیڑ کی اب تک 75,000 کے قریب اقسام دریافت کی جا چکی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی کئی اقسام کا دریافت ہونا ابھی باقی ہے۔ بھیڑ کئی رنگوں میں ملتی ہے، تاہم اس کی کئی زیادہ تر اقسام گہرے پیلے، سیاہ، سرخ اور نیلے رنگوں میں پائی جاتی ہے۔ ہر کیڑے کی طرح بھیڑ کے جسم کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں: سر، دھڑ اور پیٹ۔ اس کے جسم کے گروہ بیرونی ڈھانچہ اسے زخمی ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بھیڑ 0.008 انچ سے 2 انچ تک لمبی ہو سکتی ہے۔ بھیڑ کے منہ کا نچلا حصہ کینچی نما ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ اپنی خوراک کو کاٹتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے منہ کے آخری سرے پر ایک بہت سی چھوٹی سی سونڈ ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ پھلوں پھولوں کا رس چوستی ہے۔ ڈنگ بھیڑ کا اہم ترین ہتھیار ہے جو اس کے پیٹ کے آخری سرے پر ایک آنکڑے یا کاٹنے کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ اپنے دفاع کے لیے بھیڑ اس ڈنگ سے دشمن کے جسم میں زہر داخل کرتی ہے۔ اس زہر سے چھوٹے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں جبکہ بڑے جانور اور انسانوں کو خاصی تکلیف ہوتی ہے۔ بھیڑوں کی زیادہ تر اقسام اس وقت صرف ایک بار ہی ڈنگ مار سکتی ہے۔ بھیڑ کے سر پر 2 بڑی آنکھیں اور اس کے گرد 1 درجن کے قریب چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں۔ بڑی آنکھیں ہزاروں لینز پر مشتمل ہوتی ہیں جبکہ چھوٹی آنکھوں میں صرف 1 لینز ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بھیڑ 10 فٹ کے فاصلے سے زیادہ دور نہیں دیکھ سکتی۔ اس آنکھوں کا بنیادی کام رنگوں میں فرق اور روشنی کی کمی بیشی کو محسوس کرنا ہوتا ہے۔ سردیوں کا موسم آتے آتے چھتے میں موجود تقریباً تمام بھیڑیں مر جاتی ہیں اور صرف ملکہ زندہ رہتی ہے۔ یہ ملکہ ساری سردیوں کے درمیان زیر زمین یا درختوں کی چھال میں سرمائی نیند کی حالت میں چھپی رہتی ہے۔ اس دوران وہ اپنے جسم میں موجود ذخیرہ شدہ خوراک استعمال میں لاتی ہے۔ بہار کا آغاز ہوتے ہی ملکہ بھیڑ باہر آ جاتی ہے اور کسی مناسب جگہ پر چھتا تیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ چھوٹا سا چھتا بنا کر یہ انڈے دینے لگتی ہے۔ اس انڈوں سے زیادہ تعداد میں کارکن بھیڑوں کی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بڑے ہوتے ہی چھتے کو بڑا کرنے اور خوراک ذخیرہ کرنے لگتی ہیں۔ ملکہ انڈے دیتی رہتی ہے، اس کارکنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ بہت جلد یہ چھتا اچھا خاصا بڑا ہو جاتا ہے۔ بھیڑ کی پرواز: بھیڑ کے 4 پر ہوتے ہیں، 2 بڑے اور اس کے ساتھ 2 چھوٹے ہوتے ہیں۔ پرواز کے وقت بھیڑ اپنے ایک پر 1 منٹ میں 11,000 مرتبہ اوپر نیچے کرتی ہے۔ بھیڑ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتی ہے۔ بھیڑ چھوٹے موٹے کیڑے مثلاً ٹڈی، مکڑی اور مکھی وغیرہ خوراک میں شامل کرتی ہے۔ اس کی کئی اقسام گلے سڑے پھل، مردہ کیڑے بھی کھا لیتی ہیں۔ بہت سی اقسام صرف پھلوں کے رس پر گزارا کرتی ہیں۔
भेड़ों की वो इकसाम जो गर्म ममालिक में मिलती हैं ज्यादातर कॉलोनी बनाकर रहती हैं जिसे छत्ता कहते हैं। भेड़ अपना छत्ता मट्टी, दरख्तों की छाल या दीवारों में मौजूद सुराखों में बनाती है। भेड़ अपनी कॉलोनी लकड़ी या दीगर नबाताती मवाद को अपने मुंह से निकलने वाली रतूबत के साथ मिलाकर तैयार करती है। इस छत्ते में भी शहद की मक्खी की तरह बाकायदा खाने होते हैं। हर छत्ते में एक मलका होती है जो अंडे देती रहती है। भेड़ की इकसाम, जी हाँ, भेड़ की बहुत सी इकसाम हैं, जैसे येलो जैकेट वेस्ट जिससे पीली भेड़ भी कहा जाता है। ये भेड़ गर्म रतूब इलाकों में बड़ी तेजी से नशोनुमा पाती है। इसकी कई इकसाम हैं। ये गली सड़ी खुशक लकड़ियों और मलबे वगैरह में छुपा छत्ता बनाकर रहती है। गहरा पीला स्याह रंग इसकी खास अलामत है। पीली भेड़ का डंक खासा तेज होता है। ये अगर ज्यादा तादाद में किसी बड़े जानवर या इंसान को काट ले तो ना सिर्फ बहुत दर्द होता है बल्कि तेज बुखार भी हो जाता है। अगर बर वक्त इलाज ना कराया जाए तो जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। पीली भीड़ के छत्ते के करीब कोई जानवर या इंसान जाए तो ये फौरन हमलावर हो जाती है। अकेली भीड़ भी तंग करने पर डंग मारती है। ये भीड़ इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है कि ये दूसरे भीड़ों के मुकाबले में एक से ज्यादा मर्तबा डंग मार सकती है। पीली भीड़ सिर्फ गर्मियों के मौसम में ही जिंदा रहती है। कॉमन वेस्प, जिसे आम भेड़ भी कहा जाता है, भेड़ की ये किस्म दुनिया के कई ममालिक में मिलती है। पीले रंग पर स्याह पट्टियां इसकी खास निशानी है। आम भेड़ के कारकुन खुद ही छत्ता तैयार करते हैं जो काफी हद तक शहद की मक्खी के छत्ते से मिलता है। चूंटियां इस भेड़ के अंडों की बड़ी दुश्मन है। इससे महफूज रहने के लिए भेड़ इसे खास केमिकल तैयार करती हैं जो चूंटियों को इनसे दूर रखता है। जब छत्ते की आबादी बहुत ज्यादा हो जाए या भेड़ों की खतरा महसूस हो तो भेड़ प्रवास करके नई जगह तलाश करती हैं। वापस आकर ये मलका बाकी भेड़ों की परों की खास हरकत से इसका जगह पत्ता बनाती है और फिर सारी भेड़ें वहां चली जाती हैं। कागजी भेड़, जी हाँ, पेपर वेस्ट। ये भेड़ हमारे मुल्क के गर्म इलाकों में खासी तादाद में मिलती है। सुर्खी माइल पीला रंग, सुर्खी आंखें इसकी खास निशानी है। कागजी भेड़ का छत्ता खरे दरे का कागज जैसा होता है, इस वजह से इसे कागजी भेड़ कहा जाता है। एशियन जेंट हॉर्नेट, एशिया का जिन्नाती जंबूर। ये दुनिया की सबसे बड़ी भेड़ है। इसकी लंबाई 3 इंच तक होती है। जिन्नाती जंबूर पहाड़ी जंगलात में पाया जाता है। जिन्नाती जंबूर अकेला भी रहता है। इसका स्वर नारंगी रंग का जबकि बाकी जिस्म मट्टी के रंग का होता है। इस भेड़ का डंक 0.24 मिलीमीटर तक लंबा होता है। इसका जहर इंसान के दिल पर असर कर सकता है। अगर तभी इमदाद ना मिले तो मौत वाक़या हो जाती है। जिन्नाती जंबूर रूस, जापान, चीन, कोरिया, वियतनाम और भारत के पहाड़ी सिलसिलों में पाया जाता है। ताहम इसकी ज्यादा तादाद जापान में पाई जाती है। ब्लू आंट, नीले रंग की ये भेड़ चूंकि चूंटी से बहुत ज्यादा मिलती है इसलिए इसे भेड़ कहा जाता है। भेड़ की ये किस्म अकेली रहती है। ये ज्यादातर जमीन में सुराख बनाकर रहती है। गहरा नीला रंग और सुर्ख टांगे इसकी खास निशानी है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। झींगर इसकी खुराक होती है। इसके अलावा ये फूलों का रस भी चूसती है। इसके डंक से मुतासर हिस्सा खासा सूज जाता है। फेयर फ्लाई, ये भेड़ की सबसे छोटी किस्म है, सिर्फ 1 मिलीमीटर लंबी। ये भेड़ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका में पाई जाती है। ये भेड़ भी अकेली रहती है। इसकी चंद झील इकसाम पानी के मच्छरों की तरह परविश पाती हैं। फेयर फ्लाई दूसरे कीड़ों मसलन मच्छर, मक्खी वगैरह के अंडे खाती हैं। ये पीले, स्याह और भूरे रंगों में मिलती है। भेड़ के दुश्मन कई परिंदे मसलन मक्खी, खोरपिंदा, बीटर, मेंढक, छिपकली और बड़ी मकड़ियां भेड़ को शिकार करती हैं। भेड़ इनसे बचने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करती हैं, मसलन डंग मारता है, पत्तों पर छुप जाना या दुश्मन पर कोई बदबूदार केमिकल स्प्रे कर देना। क्या आप जानते हैं कि भेड़ खुराक की तलाश में 400 मीटर तक चली जाती हैं। भेड़ सिर्फ दिन के वक्त ही अपने छत्ते से निकलती हैं। भेड़ अगस्त से अक्टूबर के महीनों में बहुत खतरनाक हो जाती हैं।
भेड़ मच्छरों और जहरीली मकड़ियों का खात्मा करके माहौल को महफूज बनाती हैं। भेड़ों की कई अक़साम सब्जियों और फलों को खराब कर देती हैं। साइंसदानों ने ब्राज़ील में मिलने वाली एक भेड़ को डंग में कुछ ऐसे अज्जात दरियाफ्त किए हैं जो कैंसर के खुलियों को ख़त्म कर देते हैं, और ये अज्जात जिस्म के दीगर खुलियों के लिए बिल्कुल गैर मौज़र हैं। ख्याल है कि मज़ीद तहकीकात के बाद बहुत जल्द इन अज्जात से कैंसर के लिए दवायात तैयार की जा सकेंगी। भीड़ को हमारे यहाँ एक खतरनाक कीड़ा समझा जाता है। हर कोई इससे बचता या इसे मारने की कोशिश करता है। ये छोटा सा कीड़ा माहौल की बेहतरी के लिए बड़े काम करता है। इसकी बदौलत ये बेशुमार फूल और फल नशोनुमा पाते हैं। भेड़, मच्छर और कई इंसान दुश्मन कीड़े खाकर इस तरह से हमारी मदद भी करती है, और इसके बेशुमार इकसाम है। हर एक किस्म की अलग खूबियाँ हैं। भीड़ इन कीड़ों में शामिल है जिस पर मुसलसल तहकीकात जारी हैं। भीड़ के छत्ते को सिर्फ उस वक्त ख़त्म करें कि अगर ये आपके घर की दीवार पर हो। बिला वजह इस कीड़े को मत मारें। जी हाँ, ये है वेस्प, जिसे भेड़ कहा जाता है। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।